Thank you so much, Dr. Kohli, for all those insights into gold. We're shifting focus now. Delhi's air quality index on November the 1st remains in the poor category for the second consecutive day, with a reading of 233, according to the Central Pollution Control Board. The figure, however, was a slight increase from Friday's 218, but down from 373 on October the 30th. Data from CPCB, developed by Sameer app, indicated that while the AQI hovered between the moderate and poor category, Wazirpur in North Delhi was the most polluted area, with a reading of 323, which falls in the very poor category. Joining me live on the broadcast are my colleagues. From Delhi we have Arzu Seth, from Gurugram we have Gulshan Grover and Ali Khan from Noida. So I would like to go across to each of my colleagues and get their inputs on what the situation is like in each area. Arzu, I want to come across to you first. What is the situation like in the place that you are standing in? What's the AQI over there? Do you think it is easier to breathe the air as compared to previous days? If you talk about the AQI continues to be in the poor category, and right now I'm present at Anand Vihar and would like to show you, because this is one of the hotspot of pollution in the national capital, where the AQI remains in the very poor to severe category, and today also the AQI here is in the very poor category. It's above 300. Would like to show you the visuals also. As you can see, the AQI continues to be more than 300, and as you can see, the buildings nearby are not clearly visible. There is a less visibility, a thick layer of smog that has engulfed the entire area. The impact of pollution can clearly be seen, and also the visibility that has gone down. This is a particular Anand Vihar area, but as you can see, the sprinkling of water has taken place at this particular place, and also there is a smog tower that is there to combat with the pollution. And also in just a few minutes, Environment Minister Marjinder Singh Sirsa will also be visiting the place to to inspect the measures being taken at the Anand Vihar to combat with the pollution. In fact, in previous days also we have seen cloud seeding that has taken place. The true trials have already been done, and what we are being informed that there are more 8 to 9 trials that will take place in the national capital after the favorable conditions. Yes. Right. Arzu, please do stay on with us. I'm going across to my colleague from Gurugram, Gulshan Grover. Gulshan, please हमें बताएं कि गुरुग्राम में कैसा हाल है आज, वहाँ का AQI क्या है और जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है क्या वो काम आ रहे हैं? अब कम हुआ है AQI का इंडेक्स? देखिए, इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम का 267 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक है। हम रोजाना गुड़गांव की अपडेट देते हैं कि आखिरकार जो बढ़ता वायु प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है, और जो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उसके क्या क्या जो नियम है, जिस तरह से ग्रेप के स्टेज 2 चल रहा है उसमें तमाम पालना हो रही है या नहीं हो रही है, इसको लेकर लगातार हम अधिकारियों से भी जब बातचीत करते हैं तो वो कई कारण जो है इस दौरान बताते हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 267 है। इस समय भी आसमान पर सफेद जो चादर है वो इस समय ढकी हुई है, क्योंकि सुबह का समय है। हालांकि इस समय 10:15 बज चुके हैं। 10:15 बजे हम देखते हैं कि आसमान जो है वो जरूर नीला थोड़ा नजर आता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अभी भी सफेद चादर से आसमान ढका हुआ है। तो यानी ये बढ़ता वायु प्रदूषण है जो लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरनाक होता है। हालांकि सुबह के समय अब फिलहाल लोगों ने घूमना जो फिरना है, जो रोजाना की सैर होती है, वो जरूर कम कर दी है, और इसको लेकर अब हरियाणा सरकार की ओर से BS3 और BS4 के डीजल वाहनों पर भी पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया है। यानी जो वाहन प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उनको लेकर के भी अब प्रतिबंध लगा दिया है। अब दिल्ली NCR में जो भी BS3 और BS4 के वाहन हैं वो अब यहाँ पर नहीं चलेंगे, उनको पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया है। यदि वो
फिर भी सड़कों पर दिखेंगे तो उनको जब्त किया जाएगा, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी और इम्पाउंड भी किया जाएगा। ये साफ तौर से कल गुड़गांव के जो एसडीएम हैं उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो BS3 और BS4 की कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाता है ताकि स्वच्छ हवा की लोग सांस ले सकें। लेकिन अभी लोग जो है इस समय स्वच्छ हवा उन्हें नहीं मिल पा रही है क्योंकि लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। इसलिए अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। पहले से ज्यादा ओपीडी जो है इस समय सिविल अस्पताल में कहें या प्राइवेट अस्पतालों में कहें वो बढ़ गई है, चाहे उसमें सांस लेने के मरीज हों या फिर उसमें आंखों में जलन के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, बुखार के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, ये तमाम मरीज जो हैं इस समय ओपीडी में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। और केवल एक कारण है, अब लोगों को भी जिम्मेदारी समझना है। बेशक गुड़गांव की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई हो या फिर 4 ज्वाइंट कमिश्नरों की मॉनिटरिंग लगाई हो, उसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है क्योंकि धरातल पर इस समय जो दिखना चाहिए काम वो नहीं हो पा रहा है। चाहे टैंकरों के माध्यम से सड़कों पर छिड़काव हो, पेड़ पौधों पर छिड़काव की बात हो या फिर जो निर्माण कार्य जो चल रहे हैं साइटों पर उन पर खुले में जो डस्ट की बात होती है, ग्रीन नेट लगाकर काम करना होता है, उनकी बात हो। जो नियम जो बनाए हैं उनको ग्राउंड पर इस समय इम्प्लीमेंटेशन कराना बेहद जरूरी है। लेकिन इस समय नियमों की उल्लंघना साफ तौर से देखी जा रही है। कई चालान भी हालांकि इस दौरान किए गए हैं, लेकिन उन चालानों से भी लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। अब लोगों को जिम्मेदारी ये समझनी होगी कि यदि आगे आगे सर्दी जैसे जैसे बढ़ेगी और ज्यादा अगर एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो आप लोगों के लिए ही ये बेहद खतरनाक होगा। यदि आप समय रहते अब खुद ही इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, खुद ही इसका पालन नहीं करेंगे तो आप ही इसका नुकसान उठाएंगे क्योंकि आपको ही सांस लेने में दिक्कत होनी है, आपको ही दमा के मरीज बनना है, आपको ही बुखार होना है। जी बिल्कुल गुलशन हमारे साथ बने रहे। गुलशन, आई वांट टू गो अक्रॉस टू अली खान नाउ हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम नोएडा। अली, नोएडा में क्या हाल है? दिल्ली में हम देख रहे हैं थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है, उतना नहीं आया है, अभी भी पुअर कैटेगरी में है। बट नोएडा में क्या हाल है? बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, गाड़ियों को, पुरानी गाड़ियों को अब एंट्री बैन हो गई है, छिड़काव हो रहा है, तो अब वहाँ नोएडा में कैसा हाल है वहाँ का हमें बताइए ज़रा। नोएडा की स्थिति की बात करें तो कल का जो AQI था नोएडा में वो 170 के आसपास दर्ज किया गया था, जो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाता है, पुअर कैटेगरी से कम होता है, तो काफी बेहतर कल हवा थी। तो जो कल एयर की स्पीड थी जिसकी वजह से ये हवा कल जो AQI है काफी सुधार दिखा रहा था, काफी कम नजर आ रहा था। और आज फिर सुबह होते होते ये AQI बढ़ के 240 के आसपास आ जाता है, यानी 250 के करीब फिर से बढ़ जाता है। और इसी में हम परसों की बात करें तो परसों का AQI जो हमने इवनिंग की बात करें तो 400 से ज्यादा का AQI था। तो जो ये आप देख पा रहे हैं कि AQI में सडन चेंजेस आ रहे हैं, कभी एकदम स्पाइक आ रहा है और एकदम डाउनफॉल आ रहा है ये AQI का, ये हवा की वजह से हो रहा है। लगातार एयर स्पीड कभी बढ़ रही है और कभी घट रही है। जैसे एयर स्पीड बढ़ती है, परसों शाम में हल्की फुल्की बारिश और हवा की स्पीड तेज रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से अगले दिन का AQI काफी कम रहा। कल नोएडा वासियों को सांस लेने में कोई काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, काफी खुली सांस ले पाए वो लोग। हालांकि मॉडरेट कंडीशन थी, पर आज फिर से वो पुअर कंडीशन में आ जाता है। और विजिबिलिटी, आज की विजिबिलिटी काफी लो नजर आ रही है। जो विजिबिलिटी रेगुलर कल बहुत क्लियर विजिबिलिटी, आसमान नीला दिखाई दे रहा था, पर आज फिर एक सफेद धुएं की चादर नजर आ रही है आसमान और उसके बीच में। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं लगातार ऊपर सतह में इकट्ठा हो रहे हैं। अब CQN के आदेश के बाद दिल्ली में और NCR में जो डीजल के BS3 के जो वाहन हैं उन्हें प्रतिबंध किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा। तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिनसे प्रदूषण कम हो सके, पर हालांकि इन तमाम उपाय भी ये नाकाम साबित हो रहे हैं। इनसे पॉल्यूशन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। वायु कुदरत जो असर दिखा रही है अपना, जैसे जैसे हवा बढ़ती है तो AQI नीचे आता है, पर जैसे ही हवा की स्पीड कम होती है AQI फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है अगर हवा की स्पीड कम रहती है तो AQI और बढ़ेगा और ये और सीवियर कैटेगरी में जा सकता है। शिवानी जी बिल्कुल। अली और गुलशन, आपका बहुत धन्यवाद हमें अपडेट्स देने के लिए नोएडा और गुरुग्राम से। आरजू, आई लाइक यू टू स्टे ऑन विद अस एज वी हैव सम इनपुट्स दैट वी विल नीड help with. The entry from old vehicles has been banned in Delhi.
The CAQM issued a notice stating that all light goods vehicles, medium goods vehicles and heavy goods vehicles registered in another state that do not comply with BS6 standards will not be allowed entry into Delhi from November the 1st. However, commercial goods vehicles from other states that meet the BS4 standards will be permitted entry into Delhi until October 31st, 2026. There will be no restrictions on the entry of commercial goods vehicles registered in Delhi, as well as CNG, LNG or electric vehicles. Arzu, we are now getting this new notification that is banning vehicles that do not comply with certain norms from November the 1st. Please take us through the details. Well, definitely, you know, the vehicles which are below BS4, like a BS3, 2 and 1 will be banned in the national capital from today itself from entering the national capital, and these are the restrictions that have been taken to combat with the pollution, to ensure that you know, the vehicles doesn't produce pollution in the national capital, because these are a type of vehicles usually contribute to the pollution in the national capital, and that's why the restrictions are being implemented. And even if we talk about what type of vehicles will be permitted, the commercial good registered in Delhi will be permitted. There will be no restrictions on that. Also, BS6 compliant petrol, diesel commercial vehicles will be available. Also, BS4 compliant petrol, diesel commercial good till 31st/10/2026 will be permitted in the national capital. Also, CNG or LNG commercial good vehicles will be permitted, and of course EV commercial goods will be allowed in the national capital. But yes, there will be restrictions on the vehicles which are below BS4, and these restrictions are being implemented so that there might be some improvement in the air quality of the national capital. Yes. Arzu, please do stay on with us. We have some more inputs on this story. Environment Minister Manjinder Singh Sirsa will visit Anand Vihar at 10:30 AM to assess pollution control measures, also inspect ambient